Good evening, everyone. OSA IGTQ welcomes you in the session of Lunar Photography by Dr. Parminder Sir, who is Assistant Professor at Dronacharya Government College. His research interest lies in early universe structures, primordial nucleosynthesis, dark energy modeling, computation, method in physics, and astrophotography, and many more. Let's begin with the session, sir. I request you to begin with the session. Is I'm audible? Is I'm audible? Yes, yes. You're audible, sir. Thank Is my screen visible to you? Yes, visible. So can we start now? Yes, yes. Please. Okay. So I divide the session into two parts. So first is actually with presentation, and then we move to the uh, observation session. So so in this session we discuss about two things. First is the lunar visual observation, and uh, sorry, secondly the wait a minute. Second, the lunar photography. So lunar photography actually have two parts: data collection. Sorry, so it's two parts. First is data collection, and second is the data processing. So I'm only discussing about the data collection. So first we just discuss about the lunar visual observation. So what is all about the visual observation is, so in this just we view the moon uh, just by eye by using eyepieces. So I'm just telling about what are the minimum equipment you need for the visual observation, and what are the software you need for this purpose. So first thing first is you have a minimal plan on which day you have to uh, visual you set your visual observation. So for that planning, or for that planning that session, you need some software which can simulate uh, your night sky, so you can plan your session. Okay, so for this purpose, the one of the simplest app for mobile phone is Sky Safari. So Sky Safari app is there, it is in your Play Store, so you can take this from your Play Store. This is a very simple app. Okay, so you can download this app from Play Store. So is it okay? Are you getting? Yes, sir. You are perfectly audible. Okay, okay. So this is a simplest app. So there are two apps actually. Uh, this one is for your phone, and other is for your PC. PC For PC you have Stellarium and Cartus CL. So presently I'm just telling about the phone thing. So for phone you need this Sky Safari Astronomy app. Please note down this app. It is very useful and very it's freeware.
So anybody can download it from Play Store. Okay. So when you download this app, the first screen of the app is like this. So you see the whole sky, and the central portion, that ring, is the visual thing. Uh, this is your hemisphere and your sky. So you can see the timings. For example, Thursday, April 15, 2021, time is there, 9:37. Everything is there. So what you have to do after installing this app, this is your first screen. Then you just set your location by keeping your GPS on, and go into the setting tab. You see here, there is a setting tab. Just click this button and you directly move to the setting tab. In the setting, you can set your location. So by setting your location, you can write down your position here, or you can directly use current location, this tab, this button. By using this button, you directly feed all the inputs from the GPS system of your phone. Okay. So once you click this button and your GPS is on, all the uh, numbers are automatically fit in these boxes. Okay. So there are many more things in this app, but I'm not getting into all of the things. You can explore this app and discuss accordingly with me after installing this app and exploring this app. Okay. So this, I'm just telling about the minimal settings which you need to plan your session. So first you download this app. Second, you just set your location. And the third thing is, you can see in these app, you can just click buttons. For example, here I'm changing the time. For example, on 18th April, I'm changing the time and sky is changing. So at 8:40 and 6:40, moon is at this position. So this is the position on, I will show you again. For example, date is 15, 16, 17, 18. And timing, we're changing. These buttons are for changing the time, date. By clicking on these dates, time, and you can change it by these buttons. You understand this thing, this app? I'm not going into much detail. Okay. Is it fine? So, I have Dr. Parminder, I have one question. Why do we need to change the date or time? I mean, Okay. We need this app because we have to plan for our future session. For example, uh, uh, today is new moon, let's say. Okay, and we need to plan a session for 25th of April, let's say, and we want to see what is the position of moon at that time and what is the phase of the moon at that time. So by changing these date, timing, we're just planning our session. Where is the moon at that particular date and at that particular time? Okay, so this is for planning your session. जो भी आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है वो आप इससे सेट कर सकते हो उस दिन के लिए. दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई एम टेलिंग. okay, perfectly all right. Okay, so there are this is actually very good software for a free thing. This is actually a lot of things are there in this software. So there is a search app. You can search many of the messier objects, but my particular interest in this talk is lunar observation. So I'm not going into detail of the messier object. Uh, One thing is there, Caldwell objects are not there in this app, but messier objects are there, and various constellations, various stars, a lot of things are there. All the planets are there. So, and ISS, International Space Station is there. So you can track many things from this software, and it's a freeware.
This is the fundamental advantage of this software. Okay, so by putting your search in the search box, you can search anything. So the first thing first, you please download this software if you want to explore the sky and learn about the sky minimally. This is a free thing. You please download this software on your phone and try to explore. If you have any problem, um, you can contact. I will give my number to you, and the last you can discuss about the app and its things which you want to explore. Okay, so but I'm only interested in the lunar session, so I'm just showing you the moon. It's the position of moon on 18th April 6:40, because our session is on, previously it is on 18 April. I don't know how 19 April. So 18 April के लिए मैंने इसको set किया just. So this is for 18 April 2021 6:40. So moon is in the little bit west side and on this position at 6:40. Okay, so this is the planning thing. So planning thing is actually common in photography and as well as in your visual astronomy session. If you want to visually, there are two things. Please differentiate these two things. One is the visual observation, second is the photography. So in visual observation, we just using eyepiece and directly observe the astronomical object from the telescope, but directly by the eye. And secondly, the photography thing is completely different, in which you directly use your camera and take images or data, which later on you can process that data. Okay, so there are two things. So this plan is actually very important in both the things. If you want to do visual observation, you want to do photography, in both the things you need uh, this planning thing minimally. So this is a common thing for visual observation as well as for your photography session. Okay. So now the equipments we have. So minimal equipment we need for the visual observation is telescope. So first thing first, you need telescope, and the main thing is about the focal length. So in my previous talk, I already talked about the focal length thing. So focal length is actually the all about the magnification of the astronomical object. Larger your focal length of the telescope, larger is the magnification. Okay. Second is the mount. Mount is the, actually I will show you mount. Okay. मिनिमाइज के लिए इधर कहाँ पे है? Sorry. Sir, I think you need to click on escape button. Okay. Right. So I will show you the mount thing. So you see the telescope. This is you see the screen. Yes, sir. So this is the telescope, for example, and this full machine on which it is mounted. So this is actually the mount. So particular, I'm in last talk we discussed about the Altaz mount and equatorial mount. So this is equatorial mount. So it is pointed toward the pole star, and the telescope is mounted on this particular device. Okay, so okay. So mount is the device which is used to mount the telescope. It should be manual. It should be motorized. For lunar purpose or for moon purpose, you can take a manual mount also, because moon is a very big thing and you can easily track down manually during photography. But it is always very helpful if your mount is motorized.
it always tracking automatically. So your one thing is you are free from one side that you are tracking and photographing. Both the things are a little complicated. So if your mount is somehow motorized, then it is an extra advantage for you. Third thing is actually, which is the minimum equipment required, is the eyepieces for visual observation. अगर अभी कभी भी हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम लोग वी डू दिस थिंग लाइव सेशन, अगर अब ये तो हमारा ये ऑनलाइन हो रहा है, अगर हमारा वहीं पे कोई एक लाइव सेशन हो तो उसमें हमेशा हम आईपीसी से ही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो आईपीसी से एक देखने का उसको एक जो इंजॉयमेंट है वो एक अलग ही है। क्रिएटर एकदम थ्री डी व्यू दिखता है उसमें। आप अभी स्क्रीन पे देखोगे तो शायद 2D उसमें व्यू होगा, लेकिन उसमें एकदम 3D व्यू होता है। सो आईपीसी से हम लोग नॉर्मली विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं। बट द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, magnification is directly proportional to the focal length of the telescope and inversely proportional to the focal length of the eyepiece. So we know one thing: if we purchase a telescope, the focal length is fixed. We cannot change focal length daily. So what we can change, we just change our eyepiece, and my magnification is changed. So this is the main thing. So for a fixed telescope, we just changing the eyepieces, and the magnification is changed. So for mostly for visual observation, we just we the main thing for visual observation are your constellations and your clusters, these planets and moon. You cannot go beyond this for visual observation. ओके, सो विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इतना ही आपको मिलता है, क्योंकि विजुअल ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें नहीं आ पाती, बहुत डिम ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी शायद लास्ट टॉक में भी। ओके, so this is the fundamental thing which you need, and these are the fundamental device: telescope, mount and eyepieces. Telescope, sometime we need telescope, or sometime we need we use lens, DSLR लेंस। आप लोगों ने देखे होंगे कई बार जो DSLR के आगे लंबे से कुछ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट लगा होता है, दैट इज द लेंस। तो उस लेंस को भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। सो दीज आर द मिनिमल equipment you require for the visual observation. Okay, so next is this is the observation thing. Next is photography. First, I'm just dividing all the things. First is your wide field photography, in which your field of view is quite large, and you can see composite images with some background image is there, background or foreground image is there. So this is one area. Second is close-up images you can take, complete disk you can take, lunar eclipse and phases of the lunar. You can take all these types of photographs with lunar thing. So I will show you up all the things one by one. For example, close-up images and complete disk. So this is the close-up image. So in which very close up craters are looking very big and very clear, and this is a full disk. So this is your one category in which you can see the close up image, and second in which you see the complete disk of the moon. This is a full moon, and this is some phase of the moon. Okay, similarly the lunar eclipse and its phases, in which the moon transit from no eclipse to the full eclipse position. This is no eclipse position, and this is almost full eclipse. This is almost full eclipse position. So you can also shoot down these type of images with using telescope. Okay, and this is one more category, which I'm saying the lunar wide field photography and composite images. Composite images means that there is a foreground and moon is in the background, you see, but this is somehow the processing effect. One thing is collection of data, and second thing is the post processing. So in these type of photograph, you need a huge background of data processing or Photoshop, etc. So, but I'm not much interested in this particular field actually, because this is somehow a looking fake type of photos.
So, but this is one thing which people are doing. This is known as the composite images. Okay. So, so what are the equipments needed for this lunar wide field photography and composite image? So the what all the equipment remains same. Eyepiece is changed with your camera, and telescope is changed with your telephoto lens for your wide field photography. Because now your field of view is too wide, so your focal length should be small enough. You cannot take a large focal length, because if your focal length is large, your magnification is high, and you just see the moon only. You don't get the background and foreground thing. So you need a telephoto lens instead of the telescope for wide field photography. But for close-up images and complete disk and lunar eclipse thing, you need a telescope having focal length of 750 mm to 1500 mm. So please note down these numbers. These numbers are important because if you are interested in particular area, you need a particular focal length lens or telescope. So for example, this my telescope is 750 mm. So I will tell you, I have two telescopes. One is 750 mm and one is 430 mm. So I will show the photograph of both of the telescope. Wait a minute. Okay, so first I'm telling about the data collection. So instead of eyepieces, now you use DSLR cameras for photography, planetary cameras. There are special type of cameras which are used for planets, moon, but not for your deep sky objects. Webcams, your simple webcams which you use for your computer, you can also use that webcams by modifying them. And third category is the professional astrocam. These are the cameras which you can use to capture the data from sky. Professional astro camera are used for the deep sky objects also. Okay, but these DSLR and planetary camera are important for the moon thing and for your planetary thing. For planetary, DSLR is not used because magnification is very less in DSLR cameras because sensor is too large. So mostly for planetary, we need planetary cameras. Okay. So this type of planetary camera is of this type, and this is your standard DSLR. So this is planetary camera and this is your standard DSLR. Okay. Is there any doubt or is there any question? Is there any doubt? So if you have any doubt, you can please unmute yourself and you may please directly ask to the sir. Instead of writing in the chat box, you may please unmute yourself. You please ask. Okay. So someone is asking, is motorized? Let me check the question. Yes, yes, yes. Uh, Okay. Is motorized mount really required for small telescopes? Okay. So actually, the what is the advantage of motorized mount? Your telescope is small or large, it doesn't matter. But when you photograph, so you need what is your first requirement? You need a stabilized mount. If you touch your mount all the time, then your photos are not stabilized. Okay. If the motorized mount is there, it is always tracking, so that stabilization is there in your images. Otherwise, if you are touching all that, then images are always shaking. So we remove that ability of shaking the images. So for that purpose, we need the motorized mount. Okay. And this is a very simple field. Actually, lunar is a very simple thing, I say, because in this category, you don't need much precise mount. It is just tracking, that is fine. But for deep sky object, you cannot uh, take any mount. You need
very accurate mount which is tracking in arc seconds. So before purchasing mount, so you have to also you have to keep it what is your field. For example, for lunar thing you can take any mount and it can work. Okay. Sir, there is one more question in the chat box. Someone has asked, what is that camera on the right hand side? Right hand side. Right hand side, this is a planetary camera. This is a planetary camera, and this blue jack is for your computer connection, and this is RJ45 jack, and this is for your sometime you can use your planetary camera for guiding your mount. So this is for guiding. So when we do some new future session, then I will surely tell about this guiding thing, because for deep sky photography we need actually very precise movement of mount. So in that case you need to guide the mount by using this cable, and this is for your USB. शायद ये भी किसी का क्वेश्चन था hopefully. Any other question? How much is the cost of this special camera? Okay, so actually the planetary camera is not so much costly, because this camera is, I think, is in range of 20,000. Okay. Okay. Because it is not cooled camera, it is just for your planetary or for your moon thing only. It is only for your lunar thing and for your planetary thing. So it only cost about 20,000. Range also range increases with the product, but this particular camera, I have this camera. So this camera is particularly, I have taken it from 16,000. The right amount is 16,000. So it is under 20,000 always. This type of cameras. Okay. But Sir, sorry to okay. sorry to interrupt. Kavita, if you can hear me, can we allow participants to unmute themselves? They are not able to unmute their mic. Kavita, or maybe some student from the OSA organizing team are listening to me. Can we allow participants to unmute themselves? Kriti, Kavita, Siddhi. Sir, they can if they Okay, want to. fine. Okay, fine. Because someone was writing that she is unable to unmute her. Okay. Can we move ahead? Yes, sir. Please. Sir, I have a question. Sure. सर जैसे मेरे पास अब अभी तो कैमरा नहीं है प्रोफेशनल, तो मैं अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी भी इमेज शेक हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए कैसे करें? वो डिक्रीज़ हो सकती है? नहीं, शेक को हटाने के लिए तो एक the one best thing is you can use some tripod. You can use some tripod. Okay, sir. Tripod is the only option. Otherwise हाथ में तो वो हमेशा शेक होगा, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती है, वो कभी भी आपकी स्टेबलाइज में जाएगी नहीं फोन में तो, ठीक है। और हमेशा आप माउंट मतलब उसी को यूज कर सकते हो। और उसके लिए एक और टेक्निक होती है, जब आपके पास कभी DSLR होगा तो उसमें अभी एक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक इंफ्रारेड रिमोट होता है उसके साथ, उसको यूज करते हैं इंस्टेड बाय यूजिंग द बटन ऑन द कैमरा, बिकॉज बटन को भी आप टच करोगे वो भी उसके अंदर वाइब्रेशन लेके आएगा, और उससे भी इमेज के अंदर जो शेक आएगा उससे इमेज ब्लरी होगी हमेशा। ओके, सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मतलब ध्यान रखनी होती है, लेकिन बाद में आके हमें पता लगता है कि जब हमारी इमेजेस क्लीन नहीं आती कभी भी, तो वो बेसिकली यही बेसिक चीजें हैं कि मतलब वो हमेशा शेकिंग मोड में रहती है। अगर आप जितना उसको उसकी शेकिंग को रोक सकते हो, उतनी आपकी इमेजेस जो है वो क्लीन होती चली जाएंगी। सो नाउ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व। सो मैंने आपको इसके इक्विपमेंट्स बता दिए हैं। डेटा कलेक्शन के लिए आपका जो आईपीस है उसकी जगह आप या तो आप आईपीस से डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, और यू कैन यूज सम कैमरा सेंसर और कैमरा टू collect the data. Then what are the software which are used to connect these DSLR, planetary camera, webcam? So there are two freeware software. So मैं यहाँ पे सब चीज मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि हम एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव, ऑल्दो दिस फील्ड इज वेरी वेरी कॉस्टली फील्ड,
बट फिर भी हम इसको किसी तरीके से कुछ कॉस्ट इफेक्टिव बना पाए. सो वन इज द एस्ट्रोफोटोग्राफी टूल that works good for your DSLR cameras, and second is the SharpCap. It is also free software, and you can use this software for planetary camera or webcams. So these are the software. So this is the minimum requirement and minimum software hardware you need for the photography and visual observations. So there is one slide in which I'm just telling what are your setting for your DSLR. If anybody has DSLR and he or she want to take photograph of moon, so what are the minimal setting from which a photographer can start? So if you are using a lens and your lens is there is a rule called f11 rule. So in last lecture I discussed about the f ratio. F ratio is the aperture of the lens divided by the focal length of the lens. So this number is defined as the f ratio. If this number increases, if f ratio increases, this tells you that your lens or telescope is slow or fast. Okay, so in lenses you can change this f ratio because there is an option in lens you can change the aperture, but for telescope this number is fixed. Why? Because in telescope your aperture is fixed and your focal length is fixed. So automatically if your aperture is constant and your focal length is constant, then automatically this f ratio is constant. But in lenses, in camera lenses, this aperture can be changed, but focal length of the lens is fixed. So by changing the aperture, we can change the f ratio. So I'm taking an example. For example, a 300 mm lens, the aperture should be 27 mm वाइड ओपन. उसके अंदर अपने को बस 27 mm का ही अपर्चर खोलना पड़ेगा f11 बनाने के लिए. So now you can ask a question, so why this f11, this 11 number is there? So moon is actually a very bright object. So for photographing moon we need a slower telescope or slower lens. If we take a f5, so it is quite fast, but that doesn't problem because you can if your lens is fast, for example your lens is f5, आप ऐसे मत सोचो कि मेरा काम नहीं होगा, हो जाएगा. वो कहाँ पे होगा? एक्सपोजर को कम करना पड़ेगा. ये 3 सेटिंग्स हैं इसमें. लेंस के अंदर 3 सेटिंग होती है, एफ रेशियो, आईएसओ, ये आईएसओ और एक्सपोजर ये कैमरा सेटिंग्स हैं. आईएसओ गेन एंड एक्सपोजर आर दी कैमरा सेटिंग्स. किसी के पास है डीएसएलआर? आप में से किसी के पास भी है? ओके, नो इशू, वो कोई बात नहीं. जस्ट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये सेटिंग्स देखी होंगी. उसके अंदर ये जो फर्स्ट सेटिंग है, दिस फर्स्ट सेटिंग इज फॉर योर लेंस. ये लेंस के अंदर होती है. लेंस के अंदर एक आगे एक रिंग होता है नॉर्मली. यू कैन रोटेट दैट रिंग एंड क्लोज द अपर्चर एंड ओपन द अपर्चर बाय मूविंग दैट रिंग. आप वो देख सकते हो, कोई अपनी गूगल पे डाल के देखोगे फोटोग्राफ किसी भी लेंस के लिए, उसके आगे एक रिंग होता है नॉर्मली. इफ यू रोटेट द रिंग, the aperture is closed. If you rotate anti-clockwise, it again open the aperture. So उसमें आप aperture को change कर सकते हो. लेकिन ISO and exposure ये दोनों जो settings हैं, this is in your camera. So IS is actually the gain. So how bright your image is defined by the ISO and exposure. So if you increase the ISO, basically it increase your signal. The signal come from the sky, it increases with the ISO setting. If you increase 100 ISO, let's say this is 1 gain, and 200 ISO, this is 2 gain. So this 200 ISO image is twice brighter than the 100 ISO image. Okay, so ISO setting is actually the brightness of the image, but this type of brightness can simultaneously increase the noise in the image. Okay, so what we need the ISO setting minimum. जितना हम उसको कम रखेंगे हमारी noise कम रहेगी इमेज. आप उसको बढ़ा सकते हो लेकिन at the cost of the noise. Okay, so we just keep this ISO setting low, as low as possible, जितना आपका कैमरा अलाउ करता है. उसके साथ एक रूल आता है कि आपका ये सब आपका एक ऊपर हेडिंग ध्यान में रखना, ये सब जो भी बात चल रही है ये मून के लिए चल रही है. ओके, सब सेटिंग्स मून के लिए.
ये आपके डीप स्काई ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, प्लीज कीप इट नोट। ये these settings are only for the moon। F11 आप लेंस को कर सकते हो, इन सेटिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेंस को आप F11 पे रख सकते हो। कैमरा की सेटिंग्स को आप ISO को 100 रखोगे। इफ योर सेटिंग ISO सेटिंग इज 100, देन योर एक्सपोजर टाइम फॉर द इमेज is 1/100 of a second. If your ISO is 200, then your exposure time is 1/200 of a second। क्योंकि आपने अब यहाँ से ISO को बढ़ा दिया, मतलब आप ज़्यादा सिग्नल गेन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको कम कर सकते हो, टाइम को 1/200 कर सकते हो। इसके प्रोपोर्शनलिटी में आप ये रख सकते हो। ओके, सो इन मिनिमल सेटिंग से वी कैन स्टार्ट फॉर दी फोटोग्राफी। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग दी ऑब्जर्वेशन थिंग। ये सब चीज़ें थी, और उसमें मैं आपको एक दो सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊंगा। जिन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने भी आपको बताया फोटोग्राफी के दौरान, उनको मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कैसे वो काम करते हैं सॉफ्टवेयर। बट मैं अभी इसमें से कोई क्वेश्चन आपका है तो यू कैन आस्क प्लीज। Parminder sir, there is one student, Vidisha Mishra. She's asking that what kind of noise is this? Noise, basically this is actually the thermal noise. Mostly thermal noise is there, because if you are increasing the ISO setting, you are gaining your signal and your camera sensor is heated. So with the heating effect, the thermal noise is also increases in the sensor. So simultaneously, if you can increase ISO, your signal is boosting, but at the cost of that noise, your signal is increasing. For example, if you are taking ISO 100, then let's say one electron is converted into one photon, let's say. Similarly, if you are doing this 200, so for the similar photon, for similar electron, you get 2 photons. Okay, you get double signal, but at the cost of the noise. नॉइज भी आपकी बढ़ती रहेगी उसके साथ। आप इसको बढ़ाओगे, आप बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे वो एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो, स्काई से तो वही सिग्नल आ रहा है जो आना है आपका, पर लेकिन आप उसको एक तरीके से वो डिजिटल एनहांसमेंट कर रहे हो, उसको अंदर ही कैमरे के अंदर ही आप जो डिटेक्शन है उसी में ही अंदर आप बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसका कोई वैसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। हमेशा आप कोशिश करो कि जो भी आप DSLR कभी भी आप यूज करते हो तो ISO को मिनिमम सेटिंग्स पे ही कोशिश करो उसको यूज करने की, वो बेटर रिजल्ट देगा, इंस्टेड कि आप उसको हाई ISO पे पुश करके उसके कुछ रिजल्ट निकालना चाहो। ओके, पर बेसिकली वो नॉइज जो है वो थर्मल नॉइज। और भी टाइप की नॉइज होती है, बट वो मैं अभी इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। रीड नॉइज वगैरह कई चीज़ें और सेंसर में होती हैं, वो कभी हम लोग एक सेंसर का एक पूरा, क्योंकि सेंसर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग और उसमें कई सारी इन्वॉल्व फिजिक्स है, जो मतलब हम एक अलग से डिस्कस कर सकते हैं कभी। Okay, any question? So this noise will make the images hazy or what? मतलब Yes, क्या yes. difference? Make the image hazy. Actually, I will show you one image. Okay. Okay, I will show you one image. ये फिर से वो नहीं हो रहा, escape करना पड़ेगा। Okay. So the PPT session is over. ये आपका टॉक वाला पार्ट मेरा पूरा हो गया, जो मैं आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे ही जाएंगे हम डायरेक्टली, बट मैं आपको वो भी दिखाया था। एक मैंने इमेज अभी ली है। Are you? Is it visible to you? Yes. Yes. You see this image, you see a lot of stars. This is a particular cluster called M35. Okay, and you see this drizzling type of thing there in the background. You see this drizzling thing? ये देख पा रहे हो आप? Sorry, मैं जो ये drizzle है, that is actually the noise. Okay. This hazy pattern in the background. So this type of thing is there. तो अगर आप ISO को बढ़ाओगे तो मतलब इसी टाइप के पैटर्न आपके बढ़ेंगे, मतलब वो कम नहीं होंगे with ISO. Okay, so this is the here the two telescope. This telescope
Is it visible to you, this telescope? Yes. Okay. So this telescope is actually 750 mm and this is a reflector telescope which I talked about it in my last talk. This is a reflector telescope. This is the mirror. ये जो बैग इसके पीछे लगा हुआ है जो शाइनिंग ये जो दिख रहा है आपको पीछे, दिस इज एक्चुअली मिरर. और ये पॉइंट ऊपर की तरफ कर रहा है, बेसिकली ऊपर साइड पे स्काई है, वो पूरा ब्लैक आपको दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में. एंड दिस इज अ 430 mm, दिस इज अ रिफ्रैक्टर. ये रिफ्रैक्टर है, इसके अंदर लेंसेज हैं इस वाले के अंदर. अभी ये मेरा मैं इससे आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने ये वाला सेट किया हुआ है आप लोगों के लिए. सो दिस इज 750 mm रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप एंड दिस इज 430 mm रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप. ये दोनों का मैंने डिफरेंस आपको लास्ट टॉक में बताया था अगर आपको याद हो तो, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है. इसमें मेरे लेंसेज यूज हो रहे हैं, इसमें मेरा मिरर यूज हो रहा है. दोनों ही इक्वेटोरियल माउंट पे हैंग्ड है. ये मेरा अपना DIY माउंट है, ये मैंने खुद ही एक माउंट डिजाइन किया है इस टेलीस्कोप के लिए. ये थोड़ा बड़ा टेलीस्कोप है, ऑल्दो 6 kg इसका वेट है. एंड दिस इज प्रोफेशनल माउंट जो मार्केट से आपको मिलते हैं. सो दिस इज वन सॉफ्टवेयर एक्चुअली. ये जो आप सॉफ्ट मैंने अभी आपको बताया शार्प कैप. So this sharp cap is the software to use your planetary camera. So यहाँ पे आप इसके अंदर मैं आपको थोड़ा इसको शुरू से आपको दिखा सकता हूँ. अभी शो यू. ओके. ओके. सो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैंने आपको बताया अभी. वन सॉफ्टवेयर इज Cartus DUCL. दिस इज फॉर प्लानिंग एज वेल एज फॉर कंट्रोलिंग द माउंट. ये मेरे माउंट को कंट्रोल करने के लिए भी है सॉफ्टवेयर, और ये भी साथ में इसका पैनल है एक तरीके से. यू सी द स्क्रीन, दिस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब बेसिकली कंट्रोलिंग पैनल है एक तरीके से. मैं इसमें कोई भी बटन दबाऊं तो माउंट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा. और ये मेरा वो पैनल है जिससे मैं अपने माउंट को कंट्रोल कर सकता हूँ. मैं चाहूँ तो आपको भी इसमें कंट्रोल दे सकता हूँ पर मैं नहीं दूंगा. ओके. सॉरी. सेकेंडली दिस इज द सॉफ्टवेयर, दिस इज Cartus DUCL. आप इसमें पूरा स्काई देख सकते हो. ओके. इसमें सारे स्टार्स हैं, क्लस्टर्स हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट डालना चाहो. ये मून दिखा रहा है इस साइड पे नीचे, ठीक है. काफी सारे स्टार्स दिखा रहा है. ये जो रेड रेड कलर के डॉट्स हैं, दीज आर गैलेक्सीज. ये सब गैलेक्सीज हैं, ये रेड कलर के जो हैं. इसमें मतलब सारे, ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी आप स्काई में ऑब्जर्व करना चाहते हो. ऑलमोस्ट सारे कार्ड ऑब्जेक्ट हैं ये आपका, लेकिन कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर. इसका मैंने आपको नाम बताया था, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, Cartus DUCL. वैसे आपका ये काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यू कैन नॉट यू नीड अ टेलीस्कोप फॉर दिस कंट्रोलिंग. बट हाँ, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो जस्ट सॉफ्टवेयर को डाल के इन योर कंप्यूटर. द सॉफ्टवेयर नेम इज Cartus DUCL. दिस इज एक्चुअली अ स्काई चार्ट. इसमें पूरा स्काई का पूरा चार्ट बना हुआ है. आप देख सकते हो एक एक चीज इसमें है. पूरा रोटेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो. इसमें भी वैसे ही बटन है, यहाँ पे 1 hour लिखा हुआ है. ये बटन्स बने हुए हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए, जैसे आपके स्काई सफारी वाले बटन थे. इनको भी आप आगे पीछे करके स्काई को देख सकते हो कि कल स्काई कैसे होगा, परसों स्काई कैसे होगा, नेक्स्ट वीक कैसे होगा, नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, नेक्स्ट ईयर कैसे होगा. सो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान. Secondly, it also used for your handling the mount. Okay, so this is your planning software as well as your controlling software, Cartus DUCL. Okay, secondly, this is your controlling software. Second is your Sharp Cap. I'm using Sharp Cap with my planetary camera. On this telescope there is a planetary camera. वो अभी दिख नहीं रहा है इसके अंदर, पीछे इधर इधर कहीं पे लगा हुआ है. ओके. तो यहाँ से अभी ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन वाला जो कैमरा है वो, उससे आप विजुअलाइज कर पा रहे हो. नाउ आई एम चेंजिंग द कैमरा. सो यू कैन चेंज द कैमरास फ्रॉम हेयर. सो आई एम टेकिंग नाउ ZWASI. दिस इज माय कैमरा. सो मून इज देयर ऑन वन साइड. ओके. तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ थोड़ा सा इसको, जिस भी डायरेक्शन में मैं इसको मूव करना चाहूँ. वो चला गया स्क्रीन से बाहर. So now you can see. Is it visible to you?
So this is the live view of the moon. So you can see I'm just controlling with these buttons, and this is very fast actually, क्योंकि time lagging है, इंटरनेट से चल रहा है ये. मैंने भी दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन नहीं कर सकते? हाँ वेट अ मिनट, क्या नहीं कर सकते? सॉरी. फुल स्क्रीन में सर. हाँ वेट अ मिनट, वो मैं कर देता हूँ. इसको सेंटर कर देते हैं. तमिंदर सर, ये इमेज शेक क्यों हो रही है इतना? हाँ ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस है अभी, क्योंकि गर्मी है ना थोड़ी. एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से शेक हो रही है. तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में ये इमेज शेक होना? नहीं उसमें इतना सर ये लाइव इमेज है. हाँ ये लाइव इमेज है. अभी जो मून जिस भी पोजीशन पे वही इमेज है ऐसे. वो अभी दिख रही है ना आपको शेकिंग होती है, वो टर्बुलेंस की वजह से दिख रही है, जो शेक दिख रहा है इमेज में. एक मिनट में इसको थोड़ा बीच में सेंटर में सेट करता हूँ एक बार. एंड कैन वी जूम इट टू सम क्रेटर और सम? हाँ नहीं जूम नहीं कर सकते, वो जूम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई जूम करने के लिए ऐसे टेक्निक नहीं होती. पर लेकिन ये है कि हाँ आप इसमें काफी क्लियर देख सकते हो क्रेटर भी वैसे आपको, जिसमें प्रॉब्लम है. सारे क्रेटर बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं. और इससे मतलब थोड़ा ये 2D व्यू आ रहा है आपको, लेकिन यू आर व्यूइंग डायरेक्टली फ्रॉम द आई पीस, द व्यू इज 3D. जूम करने का ऑप्शन नहीं होता टेलीस्कोप में? नहीं नो, फोकल लेंथ फिक्स है ना. अच्छा. मैक्सिमाइज करना हो इसको पूरे को, तो मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? अब आपको पूरी स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये इज इट विजिबल टू यू ऑन द फुल स्क्रीन? यस यस. ये थोड़ा सा जो शेकिंग है, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, और कुछ नहीं है कारण. और फिर टाइम लैग है इंटरनेट का थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको दूसरे कंप्यूटर पे लिया हुआ है अभी. मेन कंप्यूटर से स्क्रीन नहीं आ रही, उस पर तो बहुत ज्यादा जिगलिंग हो रहा है, बिल्कुल तो काफी ज्यादा दिख रहा है. हाँ और इसके अंदर देयर आर सेटिंग्स. यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स है जो मैंने आपको बताया था, एक्सपोजर सेटिंग. तो यहाँ से आप एक्सपोजर को कम कर सकते हो. आप देख रहे हो ब्राइटनेस कम होती जा रही है जैसे मैं एक्सपोजर को कम कर रहा हूँ. यहाँ से मैं एक्सपोजर को बढ़ा रहा हूँ, वो ब्राइट होता जा रहा है. और ये जस्ट एक्सपोजर है 2.3 मिली सेकेंड के लिए. मतलब जो एक सिंगल इमेज आ रही है, जो आपको जिगलिंग दिख रहा है ना, एक से दूसरी इमेज के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज 2.3 मिली सेकेंड. और जब मैं बढ़ाऊंगा, ये जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, देखो ये पूरा का पूरा ब्राइट हो जाएगा. मतलब 7 मिली सेकेंड पे तो ये पूरा ब्राइट हो गया. ओके सो ये बड़ी फाइनली ट्यून करनी पड़ती है. यहाँ पे तो बड़ा इजी पैरामीटर है, ये हाथ से यहाँ पे कुछ मर्जी कर लो. लेकिन जब आप लेंस के साथ फोटोग्राफी करोगे तो वहाँ पे कैमरे के अंदर सेटिंग होती है सारी. तो यू हैव टू चूज द सेटिंग वेरी केयरफुली, जो मैंने आपको अभी भी बताया F11 वाला रूल. ओके सो दिस इज योर एक्चुअली मून थिंग. ये यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो. गेन ये आपका ISO है. गेन भी आप बढ़ाओगे तो मैंने आपको बताया, गेन बढ़ाओगे तो भी वो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में नॉइज भी बढ़ेगी इसमें. जब आप इमेज लोगे तो ये आपकी नॉइज भी बढ़ेगी. ओके तो इसको मैंने मिनिमम रखा हुआ है 25 पे, एंड कीपिंग दिस. सो मून के अंदर यू कैन टेक वन मोर थिंग इज देयर. तो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कैप्चर कर सकते हो. नॉर्मली मून के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो दिस इज मूविंग अप एंड डाउन. सो इफ वी टेक सिंगल इमेज देन इट मे बी ब्लर, राइट. अगर मैं एक सिंगल इमेज कैप्चर करूँ, यहाँ पे क्विक कैप्चर कर लूँ फॉर एग्जांपल, या एक स्नैपशॉट लूँ जैसा कि मैंने लिया है. फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे एक स्नैपशॉट लिया, हो सकता है स्नैपशॉट लिया हुआ मेरा ब्लर हो. रीजन बीइंग, इसको खोल के देखता हूँ कैसा है ये स्नैपशॉट.
ये वाला मैं आपको उस पर भेज दूंगा अगर आपका कोई ग्रुप है जो ये स्नैपशॉट मैंने अभी लिया है। थोड़ा इंटरनेट की वजह से लैगिंग। सो दिस इज द फोटोग्राफ लाइव, जो अभी हम लाइव व्यू देख रहे हैं उसी का ही मैंने एक फोटोग्राफ लिया। सो दिस इज द फोटोग्राफ, ये मैं आपको भेज सकता हूँ, जहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि जो हम लाइव व्यू देख रहे हैं उसका क्या कैसा फोटोग्राफ आ रहा है। बट लेकिन ये जस्ट एक सिंगल फोटोग्राफ है, इसमें शेकिंग भी है। इस शेकिंग को अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक होती है हमारी, लकी इमेजिंग। ओके, तो लकी इमेजिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कैप्चर कर सकते हैं और एक पूरी वीडियो बना सकते हैं इसकी। ओके, इस पूरी वीडियो को हम बाद में प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें से खाली वो इमेजेस हम लोग सेलेक्ट आउट कर सकते हैं जो कि हमारी शार्पेस्ट इमेजेस, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करता है। ओके, तो ये पूरी की पूरी वीडियो बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 मिनट्स की वीडियो बनाता हूँ इसकी बाय यूजिंग दैट स्टार्ट कैप्चर, और उन सबको फिर मैं लकी इमेजिंग के थ्रू उस कई सॉफ्टवेयर हैं मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो स्टैकर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैं वो वीडियो डालूंगा, वो ऑटोमेटिकली शार्पेस्ट इमेजेस को कलेक्ट करेगा और उन सबका एवरेज आउट करेगा, मीन लेगा एंड गिव यू द फाइनल इमेज। तो उसमें जो इमेज निकलेगी दैट इज द शार्पेस्ट वन, जो इससे शार्पेस्ट इमेज बन सकती थी वो बनाएगा वो। ओके, so that is also one technique which is known as the lucky imaging technique। प्लानिटरी में और लूनर इमेजेस में यही यूज होती है। कभी भी आपको प्लानिटरी में पूरे बैंड्स नहीं दिखेंगे, हमेशा आप लकी इमेजिंग करके देख सकते। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर ये जो दूसरे कंट्रोल्स हैं विच आई एम एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, जैसे एलएक्स मोड एंड ये एक्चुअली सारे कंट्रोल तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं नॉर्मली मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं मून वाला जो काम करता नहीं हूँ, पर लेकिन ये जो है और ये सॉफ्टवेयर भी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। जैसे अभी आप लोगों को दिखाना था तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। हाँ, मेन जो मेरे काम के सॉफ्टवेयर है वो मैं बता देता हूँ जो हम सबके काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर स्पेस क्या है? व्हाट इज कलर स्पेस हाँ देयर इन द पुल डाउन? हाँ कलर स्पेस में, कलर स्पेस बेसिकली LRGB है वो। ये हाँ ऊपर RAW8 लिखा हुआ है पुल डाउन मेन्यू में। हाँ दिस इज, हाँ ओके ओके, कलर स्पेस बेसिकली दिस इज फॉर योर इमेज का प्रॉपर्टी कि आप 24 बिट में उसको बिट्स हैं, ये मोनो इमेज रखना चाहते हो, रॉ इमेज रखना चाहते हो। रॉ के अंदर बेसिकली इमेज कुछ भी जो डेटा है वो प्रोसेस नहीं होता। इसको मैं, ये बिटिंग रेट है बस उसका। ओके, मतलब वो बेसिकली इमेज के अंदर अब हमारा साइज बढ़ाती जाएगी और क्वालिटी भी थोड़ी बेटर हो जाएगी। कैन वी सी द रॉ इमेज आल्सो? रॉ इमेज कैसी आती है? ये रॉ ही है, ये जो भी मैंने जो ली ना, एक रॉ इमेज आई है। रॉ ओके, इमेज में बेसिकली प्रोसेस करने के लिए आपके पूरा 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 स्पेस होता है। मतलब अगर जैसे कि जेपीईजी है इमेज, तो उसमें आधा डेटा वो कुक हो जाता है, बट लेकिन रॉ इमेज के अंदर आपको पूरा, आप इसको पूरा प्रोसेस कर सकते हो। ये जो क्रेटर्स हैं इनके अंदर, क्योंकि अभी तो ये हमें ग्रे स्केल में दिख रहा है पूरा इमेज, पूरा ग्रे ब्लैक और इसमें वाइट ही कलर है, दो ही है, मोनोक्रोमेटिक दिख रही है। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा ये ब्लू स्टिंट दिखेगा इसमें कहीं पे, जिसको हम लोग मिनरल मून भी कहते हैं नॉर्मली। मतलब इसके अंदर जो सरफेसेस के अंदर जो भी हमारे मिनरल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बाय प्रोसेसिंग। तो पर लेकिन मैं उस चीज़ को अभी नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वी नीड दैट प्रोसेसिंग टूल। उसके लिए एक मुझे इमेज लेनी पड़ेगी पूरी, पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस करके देन वी एक्सट्रैक्ट आउट द मिनरल थिंग। इसके अंदर जो भी होते हैं, जो लोग आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इमेज एंड देखो। आई थिंक ये जो वीडियो में हम फोटो देख रहे हैं उसकी पिक्सेल्स एक्चुअल में जो आ रही होंगी, आई थिंक द वन दैट यू आर ऑब्जर्विंग एट योर साइड, दोनों में शायद कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल डिफरेंस होगा। जूम में ये जूम हाँ में आई थिंक लो रेजोल्यूशन इमेज, लो रेजोल्यूशन वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है ना, आई गेस। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको वो जो इमेज जो अभी अभी मैंने कैप्चर किया है ना, वो मैं आपको शेयर। हाँ, तो आप सर कुछ इमेजेस प्लीज क्लिक कर लीजिए, कुछ एक या दो वीडियो भी सेव कर लीजिए, वो शेयर कर लीजिएगा हमारे साथ। वो मैं शेयर कर दूंगा। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप इमेज देख रहे हो, इसमें कुछ ब्राउनिश टिंट है कुछ जगह पे, कुछ क्रेटर्स के अंदर कुछ जगह ब्लूइश है। तो ब्लूइश जो टिंट है वो टाइटेनियम है, ये बेसिकली रेड ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड सॉरी।
रेड जो ब्राउनिश दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से इसमें मतलब कई सारे टिंट हैं कि हम लोग निकाल सकते हैं बाय प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग में। और अभी हमें जस्ट वो एक मोनोक्रोमेटिक इमेज दिख रही है जस्ट। ओके, सो ये एक डिफरेंस है। और मैं कुछ इमेजेस इसकी आप लोगों के सामने ही कुछ कैप्चर कर भी लेता हूँ, जो मैं आपको बाद में शेयर सर करूँगा। ये फोटो जूम आउट नहीं हो सकती जैसे मतलब फुल मून दिखे? Actually अभी नहीं हो सकती, रीजन बीइंग क्योंकि जो कैमरा सेंसर है, एक्चुअली एवरीथिंग इज फिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि द कैमरा सेंसर इज फिक्स, उसका साइज फिक्स है और हमारा टेलीस्कोप का फोकल लेंथ भी फिक्स है। ओके, सो जो वो इमेज दिखा रहा है वो आपकी इमेज, जो इमेज है वो बिल्कुल स्केल जो है वो फिक्स हुआ पड़ा है अभी। अभी मेरे को इस स्केल को चेंज करने के लिए या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैमरे का सेंसर बदलना पड़ेगा, दूसरा एक बड़ा सेंसर यूज करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो 5 मिनट के लिए तो आई विल 5 to 10 मिनट, तो मैं आपको 430 mm वाले स्कोप से दिखा सकता हूँ फुल मून जो जो आप डिमांड कर रहे हो। बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि मुझे वो कनेक्ट करना पड़ेगा ये वाला सिस्टम हटा के। How much time will it take? 10 to 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा कनेक्ट करना पड़ेगा, वो फिर उधर क्योंकि अभी आप देख रहे होगे कि वो दोनों के दोनों एक जो है बिल्कुल पार्क पोजीशन में, आपको दिखाते हैं वो दूसरा पार्क पोजीशन में है अभी। तो पार्क से फिर मून की तरफ जाएगा, ये वाला पार्क पोजीशन में है, रेड वाला जो है ये Okay. ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा, फिर ये मून की तरफ जाएगा, देन आई विल शो यू। तब मैं दिखा सकता हूँ। अगर ज्यादा हेक्टिक ना हो तो कर लेते हैं सर, हम भी देख लेंगे कैसे होता है थोड़ा सा। हाँ नहीं, तो फिर मैं वो आपको दिखा देता हूँ। And in the meantime, we can have the quiz session also. Yeah, You can you can ask. utilize that time in having the quiz. Yeah, sure. You can ask questions. Okay. Anybody has any question, please ask. Question आप पूछ सकते हो, कोई इशू Sir, नहीं है। that picture, that it's not related to lunar photography, but there is this thing that we do where we take pictures of the night sky throughout the like for 4-5 hours, and then it forms that a circular image. Okay, उस सर्कुलर इमेज बनाने के लिए यू नीड अ वाइड एंगल लेंस। मैं एक चीज कर लेता हूँ, फिर नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगी। मैं इसकी फोटोग्राफ्स कुछ ले लेता हूँ, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ, योर क्वेश्चन इज एक्चुअली दैट सर्कुलर इमेज जो हम पूरी रात भर वो फोटोग्राफी करते हैं, दैट इज एक्चुअली द डीप स्काई फोटोग्राफी। और वो पूरा जो आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है, उसके लिए आपको बहुत वाइड एंगल लेंस यूज करना पड़ता है। नॉर्मली फिश आई लेंस कहते हैं उसको हम लोग, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो तो फॉर कितने एग्जांपल, आवर्स के लिए हम करते हैं? सॉरी, मतलब कैमरे को कितने आवर्स के लिए मतलब सेट करके रखना होता है रात में? क्योंकि उसमें तो वो शायद स्टार की मूवमेंट को कवर करता है ना, सब स्टार्स हाँ, का। राइट। वो एक्चुअली दिस कैमरा, दिस 120 MCS जो अभी मैं जिससे मैं ये फोटोग्राफ कर रहा हूँ, इसके साथ एक लेंस फ्री आता है जो अभी हमें मिलता है। वो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी ना, जिसमें वो लेंस भी लगा हुआ था उसके अंदर। दैट लेंस इज एक्चुअली फ्री। वो ऑलमोस्ट फुल स्काई लेंस है। उस लेंस को लगाओ तो वो पूरा का पूरा स्काई को आपको विजुअलाइज करके दे देता है। बट आपको पूरी रात अगर वो स्काई को अगर करना होता है, उसके लिए क्या करते हैं, हम फोटोग्राफ लेते हैं कुछ सेकंड्स की। फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स की पूरी रात फोटो होगी, और सुबह वो फिर हमें सारी प्रोसेस करके स्टैक करनी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है वन बाय वन। तो उसमें आपको वो एक तरीके से मूविंग पिक्चर दिखाई देती है कि कोई वहां से मीटियोर आ रहा है, या फिर कोई शूटिंग स्टार है, या फिर गैलेक्सी आगे की तरफ चल रही है, मून आगे की तरफ चल रहा है, कोई कॉन्स्टलेशन आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो वो सारे उसमें विजुअलाइजेशन बाद में आ जाती है। आप क्या करते हो, आप जिस कैमरे को सेट करते हो, कैमरा आपका 10-20 सेकंड्स के लिए कुछ फोटोग्राफ्स लेता रहता है, और पूरी रात वो फोटोग्राफ लेगा, और बाद में उनको सबको स्टिच करना पड़ता है। दैट इज द टेक्निक। ओके, थैंक यू सर। एक मिनट में इसको कुछ सॉरी, मैं अभी वो कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं कुछ इसमें फोटोज ले लूँ, अदरवाइज फिर ये वाला फील्ड ऑफ व्यू मिस हो जाएगा। ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू, फिर बहुत छोटा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। उसमें आपको बस मून की डिस्क ही दिखाई देगी जस्ट।
आप यहाँ पे हाईलैंड भी देख सकते हो कुछ, ये जो ऊपर अपलिफ्टेड एरिया दिख रहा है आपको होपफुली मून के ऊपर इस वाली साइड पे, यस सर। ये जो अपलिफ्टेड एरिया है इधर इस साइड पे, ये कुछ ऊपर दिख रहा है आपको। ये अगर आप आईपीस से देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 2D व्यू है। यही चीज़ अगर हम आईपीस से देखें तो बहुत ही क्लैरिटी से दिखाई देता है। आई विल सेंड यू दी स्नैपशॉट्स। मैं इन सबके स्नैपशॉट ले रहा हूँ कुछ, ऑल तो मैं ज़्यादा लूनर फोटोग्राफी करता नहीं हूँ, पर चलो। आपकी स्पेशलिटी किसमें है सर? मैं नॉर्मली फोटोग्राफी के लिए आई एम नॉर्मली डूइंग डीप स्काई फोटोग्राफी। लूनर और मेरे जो डिवाइसेस हैं ये भी मतलब इतने हैं नहीं, मतलब प्लानिटरी के लिए नहीं है नॉर्मली। ऑल दो मेरे पास कैमरा है प्लानिटरी, बट मैं नॉर्मली नहीं करता उनको। फिर वो चीज़ पूरी ना बदलनी पड़ती है, सेटअप पूरा चेंज करना पड़ता है एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ अभी पार्क होते हुए दिखा सकता हूँ कि ये मेरा जो सेटअप है वो पार्क कैसे होता है फॉर एग्जांपल। फिर दूसरा सेटअप हम लोग रेडी करेंगे। सो ये मेरा वो पैनल है जिसमें से मैं इसको पार्किंग के लिए मतलब सेट कर सकता हूँ। सो मैंने कुछ पार्किंग पोजीशंस बनाई हुई हैं, 750 पार्क और 430 पार्क। ये सारी पोजीशंस हैं बेसिकली फॉर 430 इज फॉर माय सेकंड स्कोप, 750 इज फॉर दिस स्कोप, क्योंकि दिस इज इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 750। तो इनकी ये पार्किंग पोजीशन है। फॉर एग्जांपल इसको मैं पार्क टू होम पोजीशन करता हूँ लेट्स से एंड से पार्क। सो नाउ यू सी द मूवमेंट ऑफ द स्कोप, दिख रहा होगा होपफुली आपको। नाउ यू सी दैट रेड कैमरा। Is it visible to you? यस सर। परमिंदर सर, हाँ जी। इनके आपस में कोलाइड होने की भी पॉसिबिलिटी होती है क्या? आपने नहीं, दोनों दूर है कॉलम पास पास लगा रखे? हाँ कॉलम पास है ऑल दो, बट लेकिन इतना है इनमें डिस्टेंस की टकराते नहीं है नॉर्मली। ओके। मतलब मैंने इतना डिस्टेंस मेंटेन, ऑल दो वैसे बहुत ही क्लोज है। हाँ कैमरे के उसी से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पास है। दैट इज एक्चुअली अ DIY माउंट, ये वाला जुगाड़ वाला माउंट। अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा उसकी कंस्ट्रक्शन को। लास्ट टाइम मैंने आपको बैकग्राउंड में दिखाया था वो। Sir, I had a question.
Ask. Sir, I have a 230 lens for my camera, and sir, I don't have a star tracker. But sir, is there any tips you want to give me so that I can get good deep sky like beginner images from my 230 lens? So you can make a barn door tracker. You can do DIY a barn door tracker with some stepper motor. Okay, sir. So, sir, can I? There will be YouTube videos available for it. Yeah, there are various videos. I will send you some link if I will give you my number to you, and Okay, sir. I'll share the information on that number through WhatsApp or something. Okay. Thank you, sir. Now you have to wait for 5 to 10 minutes. I'm just starting. So I would like to tell something to our participants. सर ने ये जो एक माउंट जो बताया था, जुगाड़ वाला माउंट जो है, एक्चुअली ये this was the starting point when I think Dr. Parminder started taking the photographs and started setting up this whole observatory at his rooftop. ये बेसिकली उन्होंने ना बड़ा रॉ मटेरियल यूज करके बनाया है, वुडन के वो लेके और उसमें स्टेपर मोटर्स लगा के, और उसकी भी प्रोग्रामिंग फिर जो होती है, controlling those stepper motor, giving them very precise movement, writing all the codes of maybe of thousands of lines, ये सारा सर ने खुद बनाया है. And I was very much interested in motivating one team to basically replicate this whole setup at our university at IGDTUW. But वो somehow कुछ reasons की वजह से हो नहीं पाया था. But I think this is something that you can try, and you can out of this you can learn so many things by maybe if you can try to replicate this whole thing at your own, कैसे वो स्टेपर मोटर्स को कंट्रोल करना है. और शायद सर ने रास्पबेरी पाई या पता नहीं कौन सा वाला यूज किया था. सर कौन सा यूज किया था? Sorry for what? आपने ये कंट्रोलर कौन सा यूज किया था? माइक्रो कंट्रोलर. इट वाज रास्पबेरी पाई बेस्ड और आर्डिनो बेस्ड? This is Arduino based. Okay, Arduino Omega, Atmega. Arduino Mega. Okay. 328 So, 2560. Sorry. okay. So what I'm trying to explain you is this is a very interesting thing that you can try to make. कैसे उन चीजों को इंटीग्रेट करना है, और फिर कैसे वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के लिए कोड लिखना है. स्टेपर मोटर को अगर इस वे में रोटेट करना है या उस वे में रोटेट करना है, या कितने एंगल से रोटेट करना है, तो उसके लिए क्या कोड आपको, क्या कमांड आपको देनी है. सो you'll come to know so many things by doing so. और साथ में कॉन्सेप्ट्स तो हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं. You'll come to know about the electronics part also. कोडिंग वाला पार्ट भी इसमें इंटीग्रेटेड है. नहीं, और बिल्कुल. फिर अगर कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है. बहुत चीजें कुछ है. ये मतलब आप मतलब वही लर्न करने वाली बात है. मतलब मैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ, अभी ये जो इतना ये माउंट है ना, ये दिखने में ऐसा लग रहा है आपको, अगर आप इसको मतलब सामने कभी देखोगे, इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी माउंट जो ये मेरा माउंट है. और ये इसके ऊपर नॉर्मली अगर इससे परचेज करो तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख माउंट, उससे भी ज्यादा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, इट्स ऑलमोस्ट 30 kg माउंट जो मेरे पास. बट आपने जब सर बनाया था ये, तो क्या कितनी इन्वेस्टमेंट रही होगी इसको बनाने में? पर्टिकुलरली अभी तो मेरा ये 40,000 में बना है, बट लेकिन वही है कि लेकिन मैं इससे पहले एक और डिजाइन कर चुका हूँ, वो मैंने आपको बताया था. वो एक मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें मेरा लेकिन ज़्यादा कोई इतना खर्चा नहीं आया था, क्योंकि दैट इज़ फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल वुड. इसमें मैंने कुछ आयरन वगैरह भी यूज़ की हैं चीज़ें, कुछ गियर जो हैं वो प्रिसाइजली बनवाए हैं बाहर से ही. तो कुछ चीज़ें मेरी वहाँ पे कॉस्ट गई है. अदरवाइज ये भी कोई मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव ही है, ऐसा कुछ इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं लगता कि मतलब ये ठीक है, मतलब इस प्राइस में
मतलब ये ठीक है, मतलब इतना और इससे सस्ता नहीं मिल सकती चीजें आप। बट मैं सर वही बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स को, बेसिकली जैसे बहुत सारे रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट करते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ना हमारे स्टूडेंट्स के यहाँ, लिए तो बहुत मतलब ही ज्यादा इनोवेटिव चीज है एक तरीके से, इसमें यस कई एग्जैक्टली इसमें तो बहुत चीजें हैं करने को। आप लोग एग्जैक्टली आर्डिनो के जैसे, ऊपर ये लोग सीख सकते हैं कोडिंग करना। हाँ जैसे आर्डिनो में लाइन फॉलोअर रोबोट्स वगैरह बनाते हैं, जेस्चर कंट्रोल रोबोट बनाते हैं, सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी फैंसी, बट ठीक है वो भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है। बट दिस इज समथिंग विच इज रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप इसको जब बनाओगे ना, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, कैसे उस प्रिसाइज मूवमेंट को कंट्रोल करना है, कैसे उसको ट्रैक करना है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मैंने एक बार सोलर ट्रैकर बनाया था जिसमें सोलर पैनल का एक्चुअली डे टाइम में सन को ट्रैक करने के लिए हमें उसको कॉन्स्टेंटली मूव कराना होता है विथ सम स्पीड। तो उसमें भी फिर क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर दिस एंगल ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब उसका जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, समर्स में थोड़ा उसको वर्टिकली अपवर्ड रखना पड़ता है, विंटर्स में थोड़ा सा उसको साउथ की तरफ फेस करके रखना पड़ता है। तो बाई एक्सिस सोलर ट्रैकर मैंने बनाया था, तो उसमें भी कुछ कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स थे, स्टेपर मोटर्स यूज करके, और फिर उसको किस तरह से मतलब सनलाइट को ट्रैक करके और उसको कॉन्स्टेंटली उस फीडबैक लूप देके उसको उस डायरेक्शन में रखना, और फिर बीच में 5 मिनट्स के लिए आइडल करना उसको, सो दैट पावर कंजप्शन को भी मिनिमाइज करने के लिए उसको आइडल उसमें भी रखना पड़ता था। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप being a first year student, or maybe if some of you are from higher semesters, then um, all of you can give it a try. आप एक टीम बना सकते हो छोटी सी 5 या 10 स्टूडेंट की, और टीम बना के फिर if you are really interested, what I can do is I can provide you some, through OSA we can provide you some फाइनेंशियल सपोर्ट। जो भी इसमें खरीदने में, सपोज आप आर्डिनो खरीद रहे हैं, या आर्डिनो के साथ आप जो भी और कंट्रोलर खरीद रहे हैं, स्टेपर मोटर खरीद रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो फाइनेंशियली हम ओसा के थ्रू कर सकते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ दोज फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बट द टीम हैज टू बी वेरी, आई मीन ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए टीम में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और बनाना चाहते हो, तो देन प्लीज लेट मी नो, मेक अ टीम, एंड we'll propose this thing to यूनिवर्सिटी। फाइनेंशियल अप्रूवल हम ले लेंगे, जो भी उसमें मतलब जितना खर्चा आएगा। So anyone who is willing to work upon this project may contact the core team of OSA, or they may contact me also. First year, especially first year students, first semester students अगर interested हैं, ओके सर। तो आप या तो कोर टीम को कांटेक्ट कर लेना, या आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस प्रोजेक्ट। समर प्रोजेक्ट की तरह भी कर सकते हो आप इसे, अगर आपको कुछ समर प्रोजेक्ट करना है तो समर प्रोजेक्ट में आप ये कर सकते हो। सर हाउ कैन वी कांटेक्ट यू? The right person to contact is you can contact Garima, either Garima or Kriti। ओसा के 4 मेंबर्स का मैं एक बार नाम अनाउंस कर देता हूँ। There is a participant in this meeting, Kavita Meena, गरिमा एंड सिद्धि मिश्रा। या आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। गरिमा, कृति, कैन यू शेयर योर कांटेक्ट नंबर विद द पार्टिसिपेंट्स? कविता? Yes. Yes.
please be in touch with them in case if they I'm just holding my call. Hello. हाँ जी sir. I'm just holding my call for a minute. Sure, no problem. Okay. Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. सॉरी थोड़ा ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे पहले वो पूरा पार्क करना पड़ा और अभी मुझे दूसरा सेटअप रेडी करना पड़ रहा है. आप लोगों को दिखा स्क्रीन पे कुछ अभी? Is it visible to you? Yes, sir. Okay. Thank you. तो जो मैं वो आपको ISO सेटिंग के बारे में बता रहा था, now I will show you. For example, ISO is 100. So for exact brightness, what I need 1/100 of a second almost. This is the thing. आप देख रहे हो वो बिल्कुल correctly lit up हो गया moon. That is actually the setting. Thankfully एक बारी में ये center में है. So now the field of view is changed. क्योंकि ये जो अब मैं यूज कर रहा हूँ that is DSLR with 430 mm lens with 430 mm scope. इसमें थोड़ा वो जूम कर सकते हैं because this is digital zoom. यहाँ पे डिजिटल जूम है हमारे पास, ये वाली चीज. दिस इज डिजिटल जूम. ये एक्चुअली एक्चुअल जूम नहीं, ऑप्टिकल जूम नहीं है. दिस इज डिजिटल. ये यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ना. उतनी लेकिन क्लैरिटी इसमें नहीं होगी जितना क्लैरिटी से हम पहले देख पा रहे थे ना. परफेक्ट था वो. कैन सी. सो दिस इज APT सॉफ्टवेयर. ये APT है. पहले वाला दैट इज शार्प कैप and now I'm using DSLR and the software is APT, astrophotography tools. Okay. इसकी मैं एक शॉर्ट फोटो दे देता हूँ. I will also share this one. Okay. So I will share this photograph with you. हमारा कोई ग्रुप भी बन सकता है if you want. अगर आप लोग चाहते हो कि कोई ग्रुप बन जाए जिसमें हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करें
तो आप लोग एक ग्रुप भी बना सकते हो। Yes, sir. Sir, the group would be really beneficial. सॉरी सॉरी Yes, sir. The group would really help us in learning a lot new things, sir. हाँ तो So बना can you लेते हैं। make? मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। Okay, sir. आप लोग ऐड, हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें हम लोग जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं। ओके, दिस इज ऑल। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने पूछा कि इनको और डीप स्काई, जो आपका जो लेंस है वो डीप स्काई में भी यूज हो जाएगा। अगर आप उसको बांडो ट्रैकर बना लेते हो तो मिल्की वे वगैरह भी आप शूट कर सकते हो विद योर 55mm लेंस। सॉरी सुरेंद्र, ये लेकिन मेरी स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा। कैन आई क्लोज दिस सॉफ्टवेयर टैब? क्लोज कर सकता हूँ? yes. ओके, मैं एक बार नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर जो भी स्टूडेंट ऐड होना चाहते हैं उसमें हम लोग ऐड हो सकते हैं। ये टैब आ रही है, लेकिन ये वाला मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ से कोई टैब नहीं आ रही है उसमें मेरे पास। ओके, तो ये सब है। चैट बॉक्स किधर है? सॉरी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इसमें कहीं पे। सर कोई बात नहीं, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें कोई ग्रुप नहीं में। तो हाँ ठीक है। ओके राइट। या मैं शेयर कर देता हूँ आपका नंबर, हाँ हाँ प्लीज। आप नंबर बता दो एक बार। 98711 98711 36676 36676। ठीक है। ओके सर Thank you, खुशी everyone. खुशी is asking BTech IT student go to space as an astronaut बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पहले तो आपने अपनी अभी बीटेक में अभी है? है? Yes, these are all BTech student I guess. ओके तो उसके अंदर तो आप लोगों के में ये होता है ना यार सुरेंद्र, वो जो कोर्स उनमें ये लोग एनरोल नहीं करते? एस्ट्रोनॉट मतलब एरोनॉटिक्स वाले वो बीटेक एरोनॉटिकल ब्रांच होती है, बट एस्ट्रोनॉट वगैरह एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं आई थिंक दे आर एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली वही लोग होते हैं ना जो एरोनॉटिकल वाले। ओके। हाँ वही उन्हीं, क्योंकि उन लोगों का प्रोफेशन उस तरीके का होता है ना, वो काफी सारे लोग उसमें जाते हैं। मतलब अब जैसे ये कल्पना चावला है, कल्पना चावला थी या सुनीता विलियम्स हैं, ये इनका क्या बैकग्राउंड था? एरोनॉटिकल वाले बैकग्राउंड से हो। ये बीटेक एरोनॉटिकल है? हाँ एरोनॉट बीटेक तो मैं नहीं कहूँगा, सर आई हैव अ क्वेश्चन। आई डोंट नो। हाँ सर बीटेक आईटी करने के बाद एमटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं? Yes, definitely you can do it. In fact, there is a Indian Institute of Aerospace. There is a university, or you can call it as institute also, Yes, in sir. IISP. IISc, Indian Institute of Space Science. Yes. IISc, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है उसमें। UG PG programs हैं, and you can go for PhD as well. Basically there are two ways. One is this aeronautical thing. One thing is you can do your masters in physics, और फिर physics में भी आप लोग research उस तरीके की करो, you can apply it directly to the NASA. वो कर सकते हो, आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। काफी लोगों ने हम लोगों के साथ, हमारे साथ भी जो मतलब इवन हमारे कई बैचमेट्स हैं जिन लोगों ने मतलब किया बाद में अप्लाई, वो एक अलग मैटर है कि वो कुछ हुए नहीं हुए, बट लेकिन काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। और ज़रूरी नहीं है कि उसी लाइन पे ही हम लोग चलें, अगर उसके बाद भी जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो सर्न में भी हैं, तो मतलब आप लोग फिजिक्स वाली
पकड़ के देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर CERN, पार्टिकल फिजिक्स में जा सकते हो आप लोग, नासा के लिए अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन कॉस्मोलॉजी नासा में। में तो सिर्फ यूएस सिटीजन जा सकते हैं ना? नो नो नो, हु नहीं सेड नहीं दिस? ऐसा नहीं ऐसा है, ये कुछ नहीं नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, देयर लॉट ऑफ एरियाज वेयर यू कैन गो। आप आईटी में कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्टीज लेके यू कैन गो एज द कंप्यूटर इंजीनियर आल्सो। इनफैक्ट मेरा जो फील्ड रहा है पीएचडी का कंपोजिट मटेरियल्स पे, नासा लैंगले रिसर्च सेंटर है एक, विच इज टोटली डेडिकेटेड टू द कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स यूज वो करते हैं खाली ये एक फ्लाइट में। एक चीज के लिए रिक्रूट नहीं करते, मतलब वो लोग आप लोग उसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ एग्जैक्टली, थिंग्स है, बहुत सारी चीजें यस। हैं करने बट के लिए आप लोगों को। हाँ, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो एस्ट्रोनॉट के रिगार्डिंग था। एस्ट्रोनॉट, बीइंग एस्ट्रोनॉट इज अ डिफरेंट थिंग। वो फ्लाइट एक्सपीरियंस और वो सारा, आई थिंक वो रूट जो है वो डिफरेंट वे में जाता है। वो शायद मेरे ख्याल में जिनके पास ये नहीं जो नहीं, जिनको एयरफोर्स, स्पेस में ही जाना है, जिनको स्पेस में जाना है, फॉर एग्जैक्टली, एग्जांपल जो स्पेस स्टेशन वगैरह पे जाते हैं कुछ लोग यस वहाँ पे यस, उस वर्क जो मतलब उनका वर्किंग एनवायरनमेंट फिर अलग हो गया। नासा एक हाँ, अलग चीज हो गई। एक आप वो जाओगे। रूटीन साइंटिस्ट नहीं हाँ होते। वो रूटीन, दे आर हाँ, नॉट रूटीन साइंटिस्ट, दे आर रूटीन इनफैक्ट, साइंटिस्ट नहीं है। हाँ, दे आर इनफैक्ट दोज हु आर गुड इन, दे आर गुड पायलट्स, आई थिंक। राइट। उनका शायद वो बैकग्राउंड उस तरह का होता है। नहीं, इन वो लोगों ने मे नहीं बी नहीं डिफेंस क्वेश्चन से आते नहीं नहीं, हैं। मैंने इसीलिए इसीलिए मतलब पहले मैंने सुना और फिर आंसर किया है, क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोनॉट बोल रहे हैं। वो एस्ट्रोनॉट के लिए तो फिर मतलब आपको वो पायलट वाला एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन स्पेस में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही तो नहीं होते होंगे ना पायलट्स, नहीं मतलब वहां पे सर, तो काम करते हैं, उनका कुछ और भी तो ज्यादातर होता होगा काम। नहीं नहीं, मैं इतना तो नहीं कह सकता क्योंकि ना ही मैं उस फील्ड से हूँ, बट लेकिन हाँ मिनिमली जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है उनमें वो लोगों का बैकग्राउंड होता है, एरोनॉटिकल्स के बैकग्राउंड के वो लोग होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब मैं एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह सकता, आई डोंट नो मच अबाउट इट कि मतलब आप इसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि एस्ट्रोनॉट होना और फिर एक मतलब सी मैं फॉर एग्जांपल बीइंग, आई एम अ कॉस्मोलॉजिस्ट। उनको वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग वहीं नासा में फॉर एग्जांपल बट दे आर पायलट के नॉट लिए। फ्रॉम, बट लेट मी अश्योर यू, दे आर नॉट फ्रॉम द नॉर्मल बैकग्राउंड। ये वो नहीं है जो जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। वो फिजिक्स पढ़ के, सपोज उनका कॉस्मोलॉजी एरिया है, सो that astrophysicist might be working with NASA, but he's not the one who is taking the flight to the moon. जो हाँ राइट राइट ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक साइंटिस्ट हो सकता है कोई, someone could be astrophysicist who is working with the NASA, or someone could be, as I said, the one who is specialized in composite material, या IT specialist, IT specialist, CSE बैकग्राउंड से हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन दे पीपल नीड। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट बनने की बात करें तो एस्ट्रोनॉट का आई थिंक कुछ एक डिफरेंट स्किल सेट्स होते हैं। वो मे बी शायद एस्ट्रोनॉट की डिग्री मांगते हो वो, या फिर फ्लाइट एक्सपीरियंस भी मांगते हो वो। इट्स नॉट, आई मीन, दे नहीं आर नॉट बिल्कुल द मांग वन हु आर बिल्कुल रूटीन बिल्कुल बीटेक बिल्कुल इंजीनियर। बिल्कुल मांगेंगे, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ कॉस्मोलॉजिस्ट, तो आई कैन अप्लाई फॉर दी रिसर्च थिंग। वहाँ पे जो भी रिसर्च की चीजें हैं उनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ नासा में फॉर एग्जांपल। लेकिन तो सर मैं आप कहूँ भी जा सकते हो ना स्पेस में, क्योंकि रिसर्च साइंटिस्ट की जरूरत होती है। हाँ नहीं नहीं एज ए होती है। रिसर्च साइंटिस्ट, हाँ एज ए रिसर्च साइंटिस्ट की जरूरत हाँ होती है। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी PhD की, लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोनॉट ही बने वहाँ जाकर। ठीक है, वहाँ पे हाँ, ब्रांचेस यस सर। अलग अलग हैं। जैसे सर बोल रहे हैं कि कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन का बंदा है, तो कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन वाला कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में वहाँ पे पूरा IT डिपार्टमेंट में जा सकता है, कहीं पे भी होगा वो नासा में ही। लेकिन अब कहीं पे वो एक जो, क्योंकि नॉर्मल जो कहते हैं ना कि वर्ड में आएगा कि वो एस्ट्रोनॉट है बट ही इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट। वो मतलब उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, बट वहाँ पे कई ब्रांचेस और भी एग्जिस्ट करती हैं। एस्ट्रोनॉट के लिए फिर पर्टिकुलरली आपको वो सारे स्किल सेट्स चाहिए, जो कि एक मेरे को लगता है ऐसा, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कभी उस फील्ड में कभी डिग आउट किया नहीं ज़्यादा कि एस्ट्रोनॉट के लिए क्या कुछ चाहिए होते हैं स्किल सेट्स। आप एक काम करो, इफ यू हैव सो मच इंटरेस्ट इन बीइंग एस्ट्रोनॉट, नासा का ना एस्ट्रोनॉट का फ्लीट अनाउंस होता है हर ईयर। आप देखो उनका क्या बैकग्राउंड होता है। 2020 में सर उन्होंने मैं एक फ्लीट अनाउंस, देखती रहती हूँ पर मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। तो आई थिंक देन बेस्ट वे इज टू, आई मीन, स्विच योर, जैसे अभी आप बीटेक आईटी या सीएससी जो भी कर रहे हैं, फिर पीजी एंड हायर स्टडीज में गो फॉर एमएस टू द रिलेटेड फील्ड। यस सर।
MS इन दी रिलेटेड फील्ड, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया या कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद आई सर थिंक मेरा वहाँ एक से और डाउट है हम्म। सर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ही होती है या अलग अलग, मतलब उनमें डिफरेंस क्या होता है? परमिंदर सर। नहीं देखो, डिफरेंस तो है ही, उनकी डिग्री अलग है। अब मैं भी ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी clear हमें करके, भी नहीं है, क्लैरिटी वी आर क्लैरिटी नॉट नहीं है, वेरी मच क्लैरिटी क्लियर, क्योंकि हम लोग, मेरा बैकग्राउंड अगर आप मुझसे पूछो वी तो आर मेरा बैकग्राउंड फिजिसिस्ट। है कॉस्मोलॉजी का, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी बैकग्राउंड से आप चीज पूछो तो मैं कुछ उसका आंसर कर पाऊंगा। आप मेरे से जो पूछ रहे हो वो मेरी बैकग्राउंड से नहीं है बिल्कुल भी। और ना ही क्या होता है कि हम लोग डिग आउट नहीं करते उन चीज़ों को। हमारी फील्ड जो है वो इस तरीके से है ही नहीं कि मतलब हम उनमें जाएं। वो अलग वास्ट फील्ड है पूरी। बच्चे का किसी का इंटरेस्ट हो सकता है उसमें, बिल्कुल वो कोई इशू नहीं है। बट लेकिन आप उसको, हाँ ये है कि हाँ अगर आप कहोगे तो वी कैन सर्च इट आउट, कर सकते हैं। ओके सर। हाँ एंड देन बट वी विल आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, रास्ते अभी भी खुले हैं। आप बीटेक CSE कर रहे हो या बीटेक मैकेनिकल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू कैन बी सर नेक्स्ट आई एम इन सुनीता बीटेक विलियम्स, और आईटी। बीटेक IT ना। हाँ, तो यस सर। आप गो फॉर दी MS इन दी रिलेटेड फील्ड, एंड अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना है देन कोई ऐसा हर्डल नहीं है, यू कैन बी दी नेक्स्ट सुनीता विलियम्स और सो। Yes, sir. I also researched online about this. श्योरली नासा का ना फ्लीट अनाउंस होता है, एक बार देखो उनको, उनके फ्लीट में क्या बैकग्राउंड होता है उनका, उनके ना उनके पायलट्स का फ्लीट थैंक यू। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था, आई थिंक सर जो 2020 मैंने में। लास्ट देखा था, जिनको वो रिसर्च बैकग्राउंड से ही थे मैक्सिमम लोग, एक दो लोग थे जिन्होंने पहले से पायलट सीट पर मतलब कोर्स ले रखा था पायलट का, बट बाकी लोगों को वो सिखाते हैं वहीं पर जाकर बेसिक चीजें जो शिप में चाहिए होगी चलाने के लिए इमरजेंसी के राइट एक दो साल की तो ट्रेनिंग होती है। नहीं, ट्रेनिंग इज राइट। अ डिफरेंट थिंग, बट अ मिनिमल रिक्वायरमेंट आल्सो ऑलवेज देयर। मिनिमल रिक्वायरमेंट तो हमेशा होती है उनकी। वो एक अलग चीज है कि मतलब वो वहां पे जाके क्या सिखाते हैं आपको, हाँ, वो तो सो वो सिखाएंगे। एग्जैक्टली, अब जैसे मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, अगर मुझे बोला जाए तो मे बी आई डोंट नो वेदर आई एम फिट फॉर बीइंग पायलट और नॉट, बट एक वही ना, टेक्निकल बैकग्राउंड, वो मिनिमल रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो मीट अगर होती होगी तो आगे वो ट्रेनिंग वगैरह भी उस तरह का एड ऑन स्किल्स वो प्रोवाइड करते होंगे। बट क्यों परमिंदर सर, बीइंग अ फिजिसिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो फॉर एग्जांपल मैं कॉस्मोलॉजी में जब अप्लाई करूंगा, मैं आपको अपना प्रोसेस बताया हूँ, आपका उससे मैच करेगा शायद। क्योंकि जब भी उनकी ओपनिंग्स होती हैं तो उनकी वो मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये सब है और आप अप्लाई कर सकते हो। यू शुड बी PhD इन कॉस्मोलॉजी, यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ पेपर्स, दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर देयर। तो अगर वो आपके फॉर एग्जांपल आपने स्पेस इंजीनियरिंग में कर रखा है, एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में, तो वो मिनिमल रिक्वायरमेंट होगी, उस क्रेडिबिलिटी पे आप वहाँ जा सकते हो। हाँ, लेकिन वो आपकी मिनिमल डिग्री मांगेंगे। ऐसे नहीं कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वहाँ पे निकल रही है स्पेस इंजीनियरिंग में, तो आप स्पेस इंजीनियरिंग में अप्लाई करोगे, नहीं कर पाओगे। मतलब नहीं, वो बट चीज़ अभी आपकी मैच करनी चाहिए। दे आर इन देयर UG, दे कैन एक्सप्लोर सो हाँ मेनी थिंग्स, वो हाँ चाहें हाँ, तो वही वही PG लेवल पे हाँ, इवन बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मतलब अलग चीज़ है। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल हमारे अलग। पास हम आगे आ चुके हैं, हमारे पास यूटर्न लेने का स्कोप नहीं है, बट उनके पास नहीं अभी नहीं, है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दे आर हमारी इन फील्ड तो वेरी, हाँ फिक्स हो गई है। हाँ। हमारी फील्ड तो फिक्स हो चुकी है, वी आर फिक्स्ड। तो ओके, तो थैंक यू एवरीवन, नाइस सेशन। Thank you, आप sir. लोगों को आपको कुछ अच्छा लगना चाहिए। थैंक यू मैं तो सर। ये डेली ही करता हूँ। Thank you, sir. ओके thank you, ओके Parminder sir. It's been a nice experience to be with you in this session. Thank you, sir. थैंक यू सुरेंद्र, थैंक Thank थैंक यू यू सर। you. एवरीवन। ओके Thank ओके, you, everyone. Thank you. बाय।